أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کے آخر کے اندر میں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس کے اندر میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بشرا اور خوشخبری ہے، جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے. اس تبیان کی تفسیر کے اندر میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت کی تفسیر کے اندر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ دین، ایمان اور اسلام، اس کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میں بیان فرما دی. اور کل بتایا تھا کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے خطبے کے اندر میں اس کو پڑھنے کے لیے متعین کیا. اس کے اندر میں 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کی بیان فرمائی اور 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا. اور یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو پورے دین کا، اسلام کا، ایمان کا، قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے. لمبی چوڑی تفصیل ہے. علماء اور محدثین نے لمبی چوڑی اس آیت کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے اور بہت سے
उलमाए किराम ने इस आयत की तफसीर और तशरीह के अंदर में किताबें भी लिखी हुई है इसी एक आयत की मातहत के अंदर में, इसलिए कि ये आयत जो है इसको उलमाए किराम की इस्तिलाह के अंदर में जामे और माने कहा जाता है। इस्लाम के दीन के ईमान के अहकाम वगैरह सब के सब इसके अंदर में मौजूद है। 3 चीज़ों के अंदर में पहला अदल है, दूसरा एहसान है और तीसरा जो है रिश्तेदारों को देना है। ये 3 काम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है अदल का, इंसाफ का और एहसान का और रिश्तेदारों को देने का। वयनहा और अल्लाह ताला रोकता है, मना करता है अनिल फहशा ख्वाहिश चीज़ों से, वल मुनकर ऐसी बुराइयों से कि जो किसी भी मजहब के अंदर में जायज़ न हो, वल बग़ी और जुल्म से अल्लाह तबारक व तआला रोकता है। तो इन 3 चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका, 3 चीज़ों की करने के लिए हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि याइज़ुकुम, अल्लाह ताला तुमको नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। हज़रत अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी है, अपने कबीले के बड़े थे और अपने ख़ानदान के सरदार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दावत और तबलीग का मामला शुरू हुआ तो दावत और तबलीग उनको भी पहुंची। किसी ने बताया कि इस तरीके से मक्का मुकर्रमा में एक आदमी है और अपने आप को रसूल का नबी होने का दावा करते हैं वगैरह वगैरह। तो अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में तफसीर इब्न कसीर के अंदर अल्लामा इब्न कसीर ने एक रिवायत नकल की है कि इन्होंने कहा कि मैं मक्का मुकर्रमा जाता हूँ। अक़सम बिन सैफ़ी उस वक्त के अंदर में वो मुसलमान नहीं हुए थे। मैं देखता हूँ कि जो नबी और रसूल के अंदर में जो सिफ़ात होते हैं वो सिफ़ात उस नबी और रसूल के अंदर में है या नहीं है। और चूँकि ख़ानदान और कबीले के बड़े आदमी थे, इसलिए ख़ानदान वालों ने कहा कि नहीं, तुम तो बड़े आदमी हो और अभी मालूम नहीं नऊज़ुबिल्लाह वो नबी भी सच्चे हैं या झूठा कोई दावा करने वाले क्या हैं, आप नहीं जाएंगे। तो मशवरा करके 2 आदमियों को तय किया, मुतय्यन किया कि 2 आदमी जाएंगे और जा कर के देखेंगे उनके अखलाक और उनकी आदत और वो क्या दावत देते हैं, क्या करने के लिए रोकते हुक्म देते हैं और किन चीज़ों से रोकते हैं। अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 2 आदमियों को जो उनके कबीले के थे उनको कहा कि वहाँ जाकर के 2 सवाल करना। पहला सवाल मन अंत और दूसरा सवाल मा अंत। मन अंत यानी आप कौन हो और मा अंत यानी आप क्या चीज़ है। मन और माँ, मन अंत आप कौन हो और माँ अंत आप क्या हैं। तो ये दोनों आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पहुँचे और वहाँ जाकर के अपना तारुफ करवाया, पहचान करवाई कि हम फलाने कबील से, फलाने कबीले की तरफ से और अक़सम बिन सैफ़ी हमारे सरदार हैं, उनकी तरफ से हम आपकी खिदमत के अंदर में आए हुए हैं। और उन्होंने 2 सवाल जो हमने किए वो उनके सवाल है कि 2 सवाल आपसे करने के लिए उन्होंने कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करो। तो मन अंत व मा अंत, ये 2 सवाल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सवाल के जवाब के अंदर में फरमाया कि मन अंत, आप कौन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब के अंदर में फरमाया कि ना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। बस इससे ज़्यादा जो है उन्होंने अपना नसब नामा, पीढ़ी नामा ये जिक्र नहीं फरमाया, बस इस पर खामोश हो गए। दूसरा जो सवाल था
मा अंत, आप क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला माबूद है, और मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल और उसका बंदा हूँ। ये जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। और फिर उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के ज़िम्न में और इस आयत के मातहत करने के काम बतलाए कि ईमान वालों को और मुसलमानों को ये काम करने चाहिए। खास करके अदल है, एहसान है, रिश्तेदारों को देना है, और 3 चीज़ों से रुकना चाहिए, ख्वाहिश बातों से और हराम चीज़ों से और जुल्म से बचना चाहिए। ये चीज़ें जिक्र फरमाई। ये जो 2 आदमी आए थे उनके सामने अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मंशा और मकसद ये था कि वो आदमी जिसने नबूवत का दावा किया हुआ है उसका ख़ानदान भी मालूम होना चाहिए कि कोई ऊंचे ख़ानदान का है या रज़ील और दलील किस्म के ख़ानदान का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ तवज्जो और ध्यान नहीं दी। पूछा ने कि मन अंत, आप कौन है? तो कह दिया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बस। इससे आगे जो है नसबनामा जिक्र नहीं किया। कहते हैं कि ये जो 2 आदमी आए हुए थे मक्का मुकर्रमा में, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में तहकीक की कि ये तो कहते हैं कि मैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, लेकिन किस ख़ानदान के और किस कबीले की वगैरह। तो तहकीक करने के बाद में पता चला और लोगों ने इनका जो नसबनामा था, पूरा नसबनामा जो है बयान किया, और ये ऊपर तक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा जाता है। उसके बाद में ये चीज़ें करने की और न करने की ये भी उनको बताई। तो ये 2 आदमी अपने कबीले के अंदर में वापस गए। वापस जाने के बाद में ये अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर पूरी कारगुजारी बयान की। ये कारगुजारी सुनते ही ये इस्लाम के अंदर में दाखिल हो गए और फिर अपने कबीले के साथियों के साथ में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में हाजिर हुए। रिवायतों के अंदर में लिखा हुआ है कि जब इन 2 आदमियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आदत वगैरह जो कुछ भी देखा, उसको जब बयान किया अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, तो हज़रत अक़सम बिन सैफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अपने कबीले और ख़ानदान वालों को, जल्दी करो, हमसे पहले कोई सबकत न कर जाए और हम आगे वाले लोगों में बन जाए और हम ईमान लाने वालों के अंदर में सबसे आगे रहने वालों के अंदर में हम बन जाए। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कुफ्र से और शिरक से तौबा की और ईमान के अंदर में दाखिल हो गए। दूसरी बात, इस आयत की तफसीर के अंदर में लिखा है कि हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए थे और वो खुद फरमाते हैं कि मैं देखा देखी मुसलमान हो गया, या शर्मा शर्मी के अंदर में मैं मुसलमान हो गया। लोगों ने कहा और लोगों ने मुझे समझाया, तो इकराम और एहतराम की वजह से, शर्म की वजह से मैं इस्लाम के अंदर में दाखिल हो गया। लेकिन इस्लाम मेरे दिल के अंदर में दाखिल नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रसूल होने का यकीन और ये कलामुल्लाह होने का यकीन मेरे दिल के अंदर में नहीं था। फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में मैं बैठा हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नाजिल होने का सिलसिला शुरू हुआ। वही जब उतरती थी तो आपकी जो हालत होती थी, जो कैफियत बदल जाती थी, ये सिलसिला शुरू हुआ। तो काफ़ी देर तक जो है ये सिलसिला बाकी रहा
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہوش کی طرح ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش کے اندر میں آئے تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کر کے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اتری وہ کیفیت دیکھی میں نے، اس نے میرے دل و دماغ کے اندر میں بہت زیادہ اثر کیا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی اور اس کی تفصیلی بیان کی، تب یہ ایمان اور یقین کے بارے میں جو مجھے خدشہ اور شبہ اور شک تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، اور میرے دل اور دماغ کے اندر میں ایمان اور یقین مضبوط طور پر پیدا ہو گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ عدل کا ترجمہ عام طور پر اردو زبان کے اندر میں انصاف کو کہتے ہیں، اور انصاف کے لفظ کے ساتھ عدل کا لفظ بھی اردو زبان کے اندر میں بولا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کیا، عدل و انصاف نہیں کرتے، عدل اور انصاف یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو لغت اور ڈکشنری کے اندر میں عدل کا معنی جو ہے وہ انصاف کا آتا ہے، لیکن اس کی تفسیر کے اندر میں علماء اور مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہے۔ ابھی شروع کے اندر میں بتایا تھا کہ اس آیت کی تفسیر بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ تو عدل کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرے اور آپ پر کوئی ظلم کرے تو سامنے والے نے جتنی زیادتی آپ پر کی اور سامنے والے نے جتنا ظلم آپ پر کیا، اتنی زیادتی اور اتنا ظلم آپ سامنے والے کے اوپر میں کرو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے احسان کا لفظ استعمال کیا۔ اب احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کسی کی امانت کو چاہنے کے باوجود اس کے اندر میں خیانت نہ کرنا اور سامنے والے کے اوپر میں انعام اور کرم کا معاملہ فرمانا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینا جائز ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی نے ہم پر ظلم کیا، کسی نے ہم پر زیادتی کی اور ہم اس کو معاف کر دیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ عدل کا اعلیٰ درجہ ہے کہ یہ اس کی ظلم اور زیادتی کو ہم معاف کر دیں۔ پھر اس کے بعد میں احسان، حدیث جبرائیل کے اندر میں شاید پہلے سبق کے اندر میں اس سال نہیں اگلے سالوں کے اندر میں بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی آدمی آئے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی غسل کر کے کپڑے بدل کر کے ابھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں دو زانوں بیٹھ گئے جیسا کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں سوال کیا مل ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد میں سوال کرنے والے نے کہا کہ صدقتا۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے، سوال وہ آدمی کرتا تھا جس کو معلوم نہیں ہوتا تھا، یہ سوال کرتا ہے تو سوال کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا تو پھر تصدیق کرتا ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج نہیں تھا، ہمارے یہاں تو اگر ایک چیز کی ضرورت پڑتی نہیں معلوم 4-5 جگہوں کے اندر میں فتویٰ پوچھتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کے پاس سے لکھوا کر کے پوچھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی سہولت نکل آئے۔ خیر، تو صحابہ کرام تعجب کرنے لگے۔ بہر کہ اس کے اندر میں ایمان کے بارے میں سوال ہے، اسلام کے بارے میں سوال ہے، اور
احسان کے بارے میں سوال ہے. مل احسان, احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ اصل میں منصا یہ بیان کرنے کا تھا, اس لیے اس حدیث کو ذکر کیا. اس کے بعد میں قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جاتا ہے تو میں سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا نہیں ہوں. تو پھر اس آدمی نے کہا کہ علمنی عن اماراتها, قیامت کا وقت نہیں معلوم تو قیامت کی نشانیاں بتاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی. ان تلد الامۃ ربتها وان تر العورات رعات حفات رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان, یہ سب نشانیاں بتائی. خیر, اس کے راوی جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے اندر میں اس آنے والے آدمی نے جو سوال کیا تھا کہ مل احسان, احسان کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی عبادت تم ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. ان تعبد اللہ, تم اللہ کی عبادت کرو, کانک تراہ, گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں تو کم از کم اتنا استحضار ہونا چاہیے کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ مراقبہ کہتے ہیں اس کو. اور یہ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا استحضار ہمارے دل دماغ کے اندر میں ہمیشہ رہنا چاہیے. اور یہ ذکر کا فائدہ ہے اور یہ ذکر کا ماحصل اور خلاصہ ہے. آدمی ذکر کرے یہاں تک کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار پیدا ہو جائے. علماء کرام نے اس حدیث کی تفصیل کے اندر میں بھی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے کا قصہ بھی مشہور ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے اندھیرے کے اندر میں ایک ماں اپنی وہ بیٹی سے دودھ ملانے کے لیے کہتی ہے تو وہ بیٹی انکار کرتی ہے. کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے. تو اس کی ماں کہتے کہ ابھی کہاں امیر المومنین تو نہ معلوم سوئے ہوئے ہوں گے, اس رات کے اندھیرے کے اندر میں کہاں ہوں گے. تو اس بیٹی نے کہا کہ نہیں, جب امیر المومنین نے منع کیا تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, امیر المومنین کی اطاعت ضروری ہے, تو اللہ بھی تو دیکھتا ہے. یہ ہے استحضار اور اس کو کہتے ہیں مراقبہ. تو عبادات کے اندر میں اس درجے کا استحضار پیدا ہو جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یا کم از کم اتنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں, یہ عبادات کے اندر میں آسان ہے. اس سے آگے علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کے اندر میں یہ استحضار ہونا چاہیے. دوسرے فرائض کے اندر میں بھی استحضار ہونا چاہیے. عبادات کے اندر میں, معاملات کے اندر میں, معاشرت کے اندر میں, اخلاق کے اندر میں, ہر چیز کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہونا چاہیے. سب چیزیں اس کے اندر میں آ گئی. اب آدمی کے دل کے اندر میں جب استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اگر گھر کا کوئی مالک اگر موجود ہوتا ہے تو دوسرا کوئی آدمی اس گھر کے اندر میں کوئی شرارت نہیں کر سکتا. یا اگر ماں بہنوں کے ساتھ میں اگر گھر کے مرد بھی موجود ہیں تو دوسرے لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ گھر کا مالک موجود ہے. تو دنیا کا مالک اور خالق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جب آدمی کے دل کے اندر میں یہ استحضار پیدا ہو جائے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. یہ مراقبہ جس کو کہتے ہیں. اور اب تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا. ہر جگہ کے اندر میں جو ہے سی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور بہت سے جو چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں. انگوٹھی میں کیمرہ, قلم میں کیمرہ وغیرہ, ہر جگہوں کے اندر میں چھوٹے چھوٹے کیمرے ہوتے ہیں اور ڈبنگ اور ریکارڈنگ ہوتی ہے. جدید جتنی بھی سائنس کی چیزیں ہوگی اور ایجادات ہوگی, اتنا شریعت کی باتیں اور قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ اور استحضار ہونا چاہیے. اب
अदल इंसाफ से आगे बढ़े, एहसान से आगे बढ़े। एहसान करने के अंदर में आदमी को चाहिए कि इंसानों पर भी एहसान करे, जानवरों के ऊपर भी एहसान करे, किसी को भी तकलीफ न पहुँचे। एहसान का खुलासा और माहसल, यहाँ तक कि इंसान तो क्या, काफिर क्या, मुशरिकीन और यहूद और नसारा क्या, जानवरों को भी हमसे तकलीफ न पहुँचे, ये आला ऊंचा दर्जा है। अब ज़ाहिर बात है कि जब आदमी हर एक के साथ में ऐसा बर्ताव करेगा तो रिश्तेदारों के साथ में भी अच्छा बर्ताव करेगा। लेकिन उसके बावजूद तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारों का जिक्र फरमाया, व ईता इज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों को देना, वो यानी और, ईता यानी देना, दी यानी वाला वाली, और कुर्बा का माना है कराबत और रिश्तेदारी। कुर्बत और रिश्ते वालों को यानी रिश्तेदारों को देना, इससे जो है रिश्तेदारों की अहमियत पैदा होती है। इस पर उलमा किराम ने भी लंबी चौड़ी तफसील लिखी हुई है कि रिश्तेदारों की खबरगिरी करना, रिश्तेदारों की मुलाकात करना, किसी काम से नहीं, सिर्फ ज़ियारत और मुलाकात की नीयत से अपने घर से रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाना, चाहे वो अपने वालिदैन न हो, भाई बहन न हो, लेकिन अपने रिश्ते के अंदर में है, चाहे दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी मुलाकात करना, ये भी उनके हुकूक के अंदर में दाखिल है। ये तीन चीज़ें करने की है। वयन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग, और अल्लाह तबारक व तआला रोकता है फहशा, फाहिश चीज़ों से, और मुनकर ऐसे गुनाह को कहते हैं या ऐसी बुराई को कहते हैं कि जो किसी भी मजहब के अंदर में जायज़ ना हो, किसी भी मजहब के अंदर में हलाल ना हो, हर मजहब के अंदर में उसको बुरा कहा गया हो और हर मजहब वालों ने उसको हराम करार दिया हुआ हो, उसको मुनकर कहते हैं। तो फहशा के अंदर में गुनाह आ गए और मुनकर के अंदर में भी सारे गुनाह आ गए। वल बगी, और ज़्यादती न करे, जुल्म न करे, तीन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने रोका। यईज़ुकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुमको नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम याद कर लो। तो ये तीन चीज़ें जो करने की है और तीन चीज़ों से जो रोका गया है, ये छह चीज़ें ऐसी है कि उसका माहसल और खुलासा और निचोड़ ये है कि पूरी शरीयत का खुलासा और निचोड़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर में बयान कर दिया, बयान फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अब इंसान ने इस्लाम को कबूल किया, ईमान को कबूल किया, तो गोया इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया, इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला से एग्रीमेंट किया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के साथ में अहद करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो अपने अहद को और अपने एग्रीमेंट को पूरा करो। वअफ़ू बिअहदिल्लाहि, अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो। इज़ा आहदतुम, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला से अहद करो, अहद यानी एग्रीमेंट करना। वला तनकुज़ुल अयमाना बाद तौकीदिहा, और अपनी कस्मों को मजबूत करने के बाद उन कस्मों को तोड़ो मत। अयमान यमीन की जमा है कस्में, वला तनकुज़ु, मत तोड़ो, बाद तौकीदिहा, उन कस्मों को मजबूत करने के बाद। इंसान अपनी बात को सच्चा बता लेने के लिए कभी सामने वाला इकरार नहीं करता, सामने वाला इसको सच्चा नहीं समझता, तो अपनी बात को बतलाने के लिए और अपनी बात को मजबूत करने के लिए कस्में खाता है, अल्लाह की कस्में खाता है। और अल्लाह ही की कसम खाना जायज़ है, अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुमने जब कस्में खाई तो कस्में खा लेने के बाद में उनको तोड़ो मत। वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला, कसम खाने का मतलब क्या? कसम खाने का मतलब ये है कि ये कसम खाने वाला यानी बात बोलने वाला, कहने वाला, सामने वाले को जो बात बता रहा है और अल्लाह की कसम खाकर अपने बहनों के बीच के अंदर में अल्लाह को खड़ा करता है। कसम खाने वाला जिसके सामने कसम खाता है उसके बीच के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला है, और अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदार है। ये अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह की कसम खाकर सामने वाले को जो बात बयान करता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है।
कस्में क्या खाई तुमने, वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफीला, तुमने अपने खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला को कफील बना लिया और ज़िम्मेदार बना लिया। और इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं वो जो कुछ भी तुम करते हो। इस आयत की तफसीर के अंदर में लिखा है कि बहुत से लोग कस्में इसलिए खाते हैं कि सामने वाला मेरी बात को सच्चा माने, और वाक़िअतन हकीकत में अगर देखें तो ये आदमी सच्चा ही था और सच्चा ही है। दूसरा आदमी होता है झूठा, लेकिन सच्चे आदमी होता है झूठा, लेकिन अल्लाह की कसम खा करके अपनी बात को सामने वाले के सामने बयान करता है। तो सामने वाले के सामने चूंकि इसकी बात आई अल्लाह की कसम के साथ, तो ये तो इसकी बात को सच मान लेता है, सच्चा मान लेता है, लेकिन ये वाक़िअतन ये झूठा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि कस्में खाते हैं आइंदा किसी काम के करने की या आइंदा किसी काम के न करने की, लेकिन दोनों शक्लों के अंदर में न तो उसका करने का इरादा होता है जो कस्में खाई या करने की, और न तो उसका बचने का इरादा होता है जो उसने न करने की कस्में खाई। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, जैसे भी तुम कस्में खाते हो और जैसे भी तुम्हारे दिलों के अंदर में इरादे हैं, जैसे भी तुम्हारी नीयतें हैं कस्में खाने के अंदर में, तो अल्लाह ताला जानता है। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून। आदमी नेकी के काम करे, अमल करे, झूठ बोले, झूठी कस्में खाए, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये अपने नामा अमाल के अंदर में एक तरफ नेक अमाल करके नेकियों को लिखवाता है और दूसरी तरफ गुनाह करके और बुराइयां और नाफरमानियां करके अपने बदअमाल लिखाता है। तो दोनों जानिब के अंदर में नेकी भी हो रही है और बुराई भी हो रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसमें फ़ायदा क्या, एक आदमी नेकी करे और नेकी करने के साथ में बुराई करे, तो एक तरफ नेकी हुई और दूसरी तरफ बुराई हुई। अब अगर उसका मुवाजना किया जाएगा, उसका वज़न और बराबर किया जाएगा, तो न लेना और न देना कोई फ़ायदा नहीं होगा। मक्का मुकर्रमा के अंदर में एक बुढ़ी औरत थी, तफसीर के अंदर में लिखा हुआ है कि वो बुढ़ी औरत थी, दिन भर सूत काटती थी, ये कपास से सूत धागे निकालती थी, दिन भर मेहनत करते 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 शाम तक के अंदर में बहुत सा सूत उसके पास में जमा हो जाता था। शाम का जब वक्त आता था तो उस वक्त के अंदर में दिन भर की जो मेहनत करके उसने जो सूत और धागे जो बनाए हुए होते थे उनको काट देती थी और उनको जला देती थी और उनको टुकड़े टुकड़े कर देती थी। तब जाहिर बात है कि दिन भर जो मेहनत की सूत काटने की, सूत बनाने की, धागे बनाने की, शाम के वक्त के अंदर में उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुढ़ी की मिसाल कुरान पाक के अंदर में बयान फरमाई कि ईमान वालो वला तकूनु, ऐसे मत होना, कल्लती नक़ज़त गज़लहा मिन बादी क़ुव्वतिन अंकासा, वला तकूनु, मत होना, कल्लती, उस औरत की तरह, नक़ज़त गज़लहा, जिसने अपने सूत को और अपने धागों को काट दिया, मिन बादी क़ुव्वतिन, उनको मजबूत धागे बनाने के बाद क्या कर दिया, अनकासा, टुकड़े टुकड़े कर दिया, ऐसे टुकड़े टुकड़े काट करके कर दिया कि किसी के भी काम में न आए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम नेक अमाल करो और उसके बाद में आखिर के अंदर में बुराइयां करो तो कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरीके से औरत दिन भर जो है सूत काटती थी और शाम के वक्त के अंदर में उसको काट करके फेंक देती थी, तो कस्मों का मसला जो है अहम है। आगे भी अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को दावत देते हैं कि हत्तल इम्कान कसम खानी नहीं चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो अल्लाह की कसम खानी चाहिए, इसके अलावा किसी और की कसम खाना नहीं चाहिए। गोया अल्लाह की कसम खा करके हम अल्लाह को अपने दरमियान में और अपने मामलात के अंदर में अल्लाह को बीच के अंदर में कर देते हैं। तत्तखिज़ूना अयमानकुम दखलन बैनकुम, तुम आपस के अंदर में अपने दरमियान के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला को कस्में खा करके दखील बनाते हो। अन तकूना उम्मतुन, ये कि कोई जमात हो,
ही अरबा मिन उम्मतिन, वो दूसरी कौम से और दूसरी उम्मत से है, वो ज़्यादा फ़ायदा वाली हो। इन्नमा यबलुकुमुल्लाहु बिही, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों के ज़रिया से तुमको आजमाता है। वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति, और ज़रूर बेज़रूर अल्लाह तबारक व तआला बयान करेगा, वाज़ेह करेगा तुम्हारे लिए क़यामत के दिन, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, मा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, दुनिया के अंदर में जिस चीज़ के अंदर में भी तुम इख्तिलाफ करते थे, इसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला जो है दुनिया के अंदर में नहीं, आखिरत के अंदर में करेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो दुनिया के अंदर में फैसला कर देता। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो रोज़ ज़मीन के ऊपर में नाफरमान एक आदमी भी ना होता, ना मर्द ना औरत, कोई भी नहीं। अल्लाह ताला चाह, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को इख्तियार दे दिया, इंसानों को ताकत दे दी, और इंसानों को अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया से रास्ते बता दिए। अब इंसान जो भी रास्ता इख्तियार करता है वो अपने इख्तियार से रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह ताला मजबूर नहीं करता। जो लोग जन्नत वाले रास्ते पर चलते हैं अल्लाह ने उनको मजबूर नहीं किया, जो जहन्नम वाले रास्ते पर चलते हैं उनको अल्लाह ने मजबूर नहीं किया। अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए और इख्तियार दे दिया, पावर, ताकत और कंट्रोल दे दिया। अल्लाह ताला को इल्म अज़ली और इल्म अबदी के एतबार से मालूम है कि इस बंदे को इख्तियार दिया जाएगा और ये बंदा ये रास्ता इख्तियार करेगा और ऐसा ऐसा हो करके जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के कहने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, अल्लाह के कहने की वजह से गलत रास्ता ये आदमी इख्तियार नहीं करता। इसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र फरमाया, वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, उम्मतु वाहिदा, उम्मत का माना उम्मत, वाहिदा का माना एक। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता लजअलकुम, तो तुमको बना देता उम्मतन वाहिदतन, एक उम्मत बना देता। सारी उम्मत, सारी दुनिया के इंसान अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के रसूल को मानने वाले बना देता। वलाकिन युज़िल्लु मन यशाउ व यहदी मन यशाउ, लेकिन अल्लाह ताला जिनको चाहता है गुमराह करता है और जिनको चाहता है हिदायत देता है। ये तफसील मैंने इसीलिए बयान कर दी कि अल्लाह के गुमराह करने की वजह से बंदा गुमराह नहीं होता। अभी 2-4 दिन पहले भी बताया था कि क्लास के अंदर में अगर कोई तालिब इल्म या स्टूडेंट है और बिल्कुल कमज़ोर है और याद भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करता, तो इम्तिहान से पहले ही मास्टर और टीचर और वो सब कह देते हैं कि फलाना फलाना तालिब इल्म या स्टूडेंट जो वो नापास है। तो मौसम या टीचर के कहने की वजह से नापास नहीं हुआ, उसने मेहनत नहीं की, इसकी वजह से वो नापास हुआ। तो ठीक इसी तरीके से अल्लाह के गुमराह करने की वजह से गुमराह नहीं हुआ। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुन्तुम तामलून, और दुनिया के अंदर में जो कुछ भी तुम करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुमसे सवाल किया जाएगा। आखिर के अंदर में फिर अल्लाह तबारक व तआला कसमों का इनकार फरमाते हैं कि कसमें मत खाओ। वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दखलन बैनकुम, तुम अपनी कसमों को अपने दरमियान में और अपने मामलात के अंदर में दखील मत बनाओ, बीच के अंदर में कसमों को मत लाओ। फतज़िल्ल कदमुन बाद सुबूतिहा, हो सकता है कि तुम्हारे कदम फिसल जाए उन कसमों को करने बोलने के बाद या ईमान लाने के बाद तुम फिसल जाओ। व तज़ूक़ु सुअ, और बुराई तुम चखो, बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, इसलिए कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। कल भी आया था नहीं कि एक तो आदमी खुद गुनहगार है और दूसरा है कि लोगों को भी रोकता है। तो आया था कल कि जहन्नम के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था नहीं कि ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, अज़ाब के ऊपर में अज़ाब उनको देंगे, एक तो गुमराह होने का और दूसरा गुमराह करने का। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वतज़ूक़ु सू, और तुमको बुराई पहुँचेगी, तुम बुराई चखोगे, बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, इसलिए कि तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। वलकुम अज़ाबुन अज़ीमुन, और तुम्हारे लिए जो है बड़ा अज़ाब है। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला, और अल्लाह ताला का ये जो अहद है उसको मामूली कीमत के अंदर में मत बेचो, मामूली रकम लेकर के उसको मत बेचो।
इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ वो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ भी तुम्हारे पास में है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। व मा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह ताला के पास में है वो बाकी रहने वाला है। उलमा किराम ने लिखा है कि आम तौर पर जहाँ कहीं भी इस आयत की तफसील वगैरह की जाती है तो आम तौर पर इससे माल मुराद लिया जाता है। मा इंदकुम यनफदु, तुम्हारे पास में जो भी माल है वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला की ख़जाने जो हैं वो बाकी रहने वाले हैं। लेकिन हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब पाकिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे उस्ताद थे, वो उस्ताद फरमाया करते थे कि सिर्फ माल नहीं बल्कि दुनिया के अंदर में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी चीज़ें दे रखी है, जितनी भी चीज़ें दे रखी है वो सब की सब ख़त्म होने वाली है। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत दी, तुम्हारे पास में हुकूमत है, यनफदु, ख़त्म हो जाएगी। तुमको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी, माल भी ख़त्म हो जाएगा, दौलत भी ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ भी दिया हुआ है, माँ जो कुछ भी दिया हुआ है ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये ख़त्म होने वाला है और अल्लाह के ख़जाने बाकी रहने वाले हैं। वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, आदमी को सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, अपने हुकूक को छोड़ना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए, लोगों के हुकूक को अदा करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस तरीके से अगर जमे रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनको बदला देंगे बेहतरीन। वलनजज़ियन्न, और अलबत्ता हम ज़रूर बेज़रूर बदला देंगे किनको, अल्लज़ीना सबरू, जिन लोगों ने सब्र किया, अजरहुम, उनका अजर, उनका सवाब, बिअहसनि मा कानू यअमलून, इसलिए कि वो दुनिया के अंदर में अच्छे अमाल करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल दायमी तौर पर बयान फरमा दिया, मन आमिला सालिहन, जो भी नेक अमल करे, अच्छा अमल करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वह मुमिन, शर्त यह है कि वो मोमिन होना चाहिए। नेक अमल शर्त यह है कि ईमान होना चाहिए, इसलिए कि बग़ैर ईमान के कोई भी नेक अमल चाहे जानी माली कितना भी हो ये अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, बशर्ते कि वो मोमिन है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देंगे, उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा बना देंगे। बहुत सी मरतबा दुनिया के अंदर में मकान है, गाड़ी है, माल है, दौलत है, औलाद है, सब कुछ है, लेकिन चैन और सुकून नहीं है, इसलिए कि घर के अंदर में दीनदारी नहीं है। घर के अंदर में दीनदारी न होने की वजह से चैन और सुकून नहीं होता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ज़िक्रुल्लाह से, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों के अंदर में इत्मीनान पैदा होता है। और ज़िक्र से मुराद कुरान भी है और ज़िक्र से मुराद दीन भी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और हम उनको ज़रूर बेज़रूर बदला देंगे उनके अच्छे आमाल का जो वो दुनिया के अंदर में करते थे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब आप कुरान पढ़ो, फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद से। कुरान नेकी का काम है, कुरान इबादत का काम है, कुरान को पढ़ना, सुनना, सुनाना ये नेकी का काम है। नेकी के काम करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला पनाह मांगने के लिए कहता है कि शैतान से पनाह मांगो। इस पर उलमा किराम ने लिखा कि जो भी काम है, चाहे नेकी का हो या कोई दुनियावी ज़रूरत का काम हो, उसको करने से पहले भी शैतान से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह की पनाह के अंदर में आना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान का किसी पर नहीं चलता है बशर्ते कि वो अल्लाह पर ईमान रखता है, तवक्कुल रखता है। इन्नहु लैसा लहू सुल्तान, यकीनन शैतान का पावर और ताकत और कंट्रोल नहीं चलता
अलल्लज़ीन आमनू, ईमान वालों पर। ईमान वालों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आदमी जो गुनाह के अंदर में मुब्तला होता है तो कोई शैतान आकर के पकड़ करके उसको गुनाह के ऊपर में मजबूर नहीं करता है, उसके दिल के अंदर में बात डालता है। एक बात फरिश्ते की तरफ से डाली जाती है, एक बात शैतान की तरफ से डाली जाती है। अब आदमी को इख्तियार है, नेक काम करे या बुरा काम करे। इन्नमा इन्नहु लैसा सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों पर उसका कब्जा कुदरत नहीं चलता। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उन लोगों पर भी शैतान की बात नहीं चलती कि जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं। तो शैतान का पावर, ताकत कहाँ चलती है? इन्नमा सुल्तान हो, शैतान का पावर ताकत चलती है कहाँ पर? अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, उन लोगों पर उसका पावर चलता है जो लोग शैतान को अपना दोस्त बनाते हैं, शैतान को अपना वली बनाते हैं, शैतान को अपना वाली बनाते हैं, शैतान को अपना जिम्मेदार बनाते हैं। वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और वो लोग कि जो अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, उनके ऊपर में शैतान का जोर चलता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और सबकी हिफाजत फरमाए।